Okay, so we are done. Everything is on record mode. Okay, so yeah. So okay, so this entire training is divided into some modules. Okay, the entire module is hourly distributed. दैट मीन्स पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो आपका है वो पूरा मॉड्यूल वाइज स्पेसिफिक टूटा हुआ है और आवरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सेशन, राइट, ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट डिफरेंट टूल्स. ठीक है, जिसमें वी स्टार्टिंग विद फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग राइट विद इन दिस 14 आवर्स. ओके, सो बहुत सारे आपके राइट क्वेरीज रहेंगे, राइट, बट यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये 3 महीने 4 महीने का कोर्स है, एटलीस्ट टू बी अ इंटरमीडिएट लेवल. एंड इफ यू गो बियॉन्ड दिस, it will be almost like 6 months 8 months required for complete data analytics. But as for the protocols like specified by the college, by the administration, we are wrapping everything in 14 hours, so it is just like you can take this as a crash course kind of thing. ओके, सो अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, तो लाजमी ये आपको हेल्प करेगा किसी ना किसी चीज़ में. ओके, सो लेट्स गो ahead and start it. Okay, so so we are going with the first module. Okay, and we will be covering both the fundas, that is data analytics part. Okay, and if you add a little bit of stuff of ML, थोड़ा सा ML mix कर दोगे तो it will cover your data science वाला part as well, correct? So let's move ahead with foundations of data analytics. Okay, so the entire goal of these 2 hours of the session is building the analytic model mindset before we start with any tools. Okay, now when I say analytic mindset, okay, when I say what is analytical mindset, okay, so what do you think? What is basically an analytic mindset? What do you people think? What is analytical mindset? Try to make the session very interactive. Okay, don't sit and just watch it like a movie. Getting my point? So don't consider this as a movie or just you are getting like just watching like a movie. Okay, so make this session as interactive so that you can get more advantage of it. So wanted to know from your end, what do you think? What is an analytical mind? My mic is on mute. No, I can hear you. Acha, you people are on mute. Okay, 1 second, 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. You people are not allowed to unmute. Yeah, now see, are you people can unmute yourself? Yes, please confirm. Can anybody speak and confirm? Okay, Hati. So who would like to answer this question? What is an analytical mindset, or what do you mean by this uh, analytical mindset? Yes, guys. No idea. See, definitely you need to answer, right? Acha, छोड़ो. Tell me what is data analytics. And Muhammad Anas, yes.
नो आइडिया। ओके। ओके ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स डेफिनेटली लाइक वी विल कवर, राइट? So what do you understand by this like analytical thinking? Basically, uh, if you can question, right? If you can question, okay, that means uh, आपको कोई सवाल पूछा गया एंड यू आर नॉट मेकिंग जस्ट गेसेस, ठीक है? सिर्फ गेस नहीं करना है, करेक्ट? गेस नहीं करना है मीन्स वी नीड नॉट टू गेस एनीथिंग. You need to measure it, you need to break it, you need to give proper reasons, you have to compare everything, then you have to take any decision. ठीक है? तो कहने का मतलब है कि एनालिटिकल माइंडसेट मींस you can say like people are detectives, right? James Bond detectives. If right now you have seen the movie Dhurandhar as well, okay, so you have to behave like a raw agent, correct? You have to behave as a security agent, correct? So that you can know each and every consequence, reason why a particular thing is happening, okay, and on the basis of that you can uh, decide, means you can take decision, correct? Understood or not? So this is what an analytical mindset is. So एनालिटिकल माइंडसेट में लाइक आपको, जैसे आपको कोई स्टेटमेंट बोल दिया गया, ठीक है, या आपको कोई डेटा दे दिया गया, और वो डेटा बहुत ज्यादा, मतलब कोई स्टेटमेंट है और कोई वेग स्टेटमेंट है, ठीक है, या कोई डेटा है जो कि बहुत वेग है, राइट? व्हेन आई से वेग, बाय वेग व्हाट आई मीन इज एबनॉर्मलिटीज हैं उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है? बहुत ही ज्यादा रॉ डेटा है, मीन्स नो फिल्टर्स नथिंग, पूरा का पूरा रॉ डेटा है, मीन्स लाइक उसमें कुछ भी आप डेराइव नहीं कर सकते, ठीक है? इन दैट केस you try to using your analytical skill, you try to know where, how, what, whom, which, ठीक है? जो 5W होते हैं ना, करेक्ट? 5W, what, where, which, तो इन सब के बारे में, राइट, दीज क्वेश्चंस यू आस्क, ठीक है? आप इन सब ये सारे क्वेश्चंस पूछते हो और इसके हिसाब से आपको जैसे जैसे आंसर्स मिलते जाते हैं, और फाइनल कंक्लूजन जो आपको मिलता है उसके बेसिस पे आप फिर कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं. दैट इज ऑल एनालिटिकल माइंडसेट, ठीक है? तो रेज्यूमे में भी आप लोग लिखते हैं ना, लाइक जब आप रेज्यूमे में लिखते हैं तो आप एक टेक्निकल स्किल्स डालते हैं, फिर एक सॉफ्ट स्किल डालते हैं. सॉफ्ट स्किल में आप डालते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, राइट? सॉफ्ट स्किल्स में आप डालते हैं, राइट? तो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल्स में जो आप भरते हैं, अपने रिज्यूमे में लिखते हैं, वहां पर जो एनालिटिकल स्किल होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, ये सारी की सारी चीजों कम्स अंडर एनालिटिकल थिंकिंग, right? So, let's come to our technical discussion. So basically, आज के सेशन में हम ये देखेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, राइट? और इसके बाद साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये एनालिटिकल माइंडसेट अगर डेवलप हो रहा है, राइट, तो इसमें डेटा का क्या रोल होता है, ठीक है? सो इससे पहले कि लाइक आई शुड गो इन मोर डिटेल, राइट, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे? हम लोग चल रहे थे आईटी टेक्नोलॉजी में, ठीक है? किस पे चल रहे थे? आईटी टेक्नोलॉजी में, मतलब लास्ट 20-25 ईयर से, ठीक है, 20-25 ईयर्स, ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग विद आईटी टेक्नोलॉजी. Now, when we say IT technology, what is the meaning of IT technology? जब हम आईटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आईटी टेक्नोलॉजी में आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेसिकली आईटी का कौन सा फील्ड आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर फोकस किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कुछ
एक ई कॉमर्स बनाना है, ठीक है, या एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। अब पहले क्या बात की जाती थी कि लोग कहते थे कि भाई ये ई कॉमर्स किस में बनेगा, किस टेक्नोलॉजी में बनेगा, ठीक है। जैसे लोग पहले कहते थे कि भाई आप इसको जावा पे बना लो, ठीक है, डॉट नेट पे बना लो, पीएचपी पे बना लो, ठीक है। या पहले बोला जाता था कि अ, अभी इस समय जैसे पॉपुलर चल रहा है मर्न पे बना लो, राइट, रिएक्ट और नोड पे बना लो, तो या पाइथन विद जेंगो पे बना लो। तो ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना, मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे अगर मैं बात करूं 1980s के आसपास, राइट, 1980s या 1990s के आसपास अगर आप देखोगे तो उस समय डॉट नेट, इसके बाद फिर डॉट नेट के बाद जावा, फिर पीएचपी, इसी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी का क्रेज आता गया, राइट। तो ये जो पार्ट है ना जहां पे टेक्नोलॉजीज की बात करें, मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक ही हो सकता है, लेकिन अलग अलग जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती गई, और उन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे हम लोगों ने चूज करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब एप्लीकेशन इस टेक्नोलॉजी में बनने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाओ, तो राइट नाउ वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, बच्चे भी सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे मर्न करना है, कोई कहता है मुझे पाइथन विद जेंगो करना है कि नहीं। तो ये जो चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो चल रहा है, इसको ड्राइव कौन कर रहा है, इस इन सारे के सारे एप्लीकेशंस को ड्राइव करता था टेक्नोलॉजी। तो वहां पर क्या होता था, टेक्नोलॉजी बड़ी मैटर करती थी कि अगर कोई एप्लीकेशन जावा पे बनेगा तो जावा की अलग अलग एप्लीकेशन की टेक्निक होगी, डॉट नेट बनेगा तो डॉट नेट के अलग एप्लीकेशन और टूल्स और टेक्निक्स होगी, पीएचपी यूज करेगा, पीएचपी में लारावेल यूज कर रहा है, कोऑर्डिनेटर यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, तो उसका अपना स्कोप होगा, मॉन टेक्नोलॉजी का अपना स्कोप होगा। तो स्कोप के हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब स्कोप के हिसाब को देखते हुए लोग क्या करते थे, अपना टेक्नोलॉजी चुनते थे। जैसे अब इसमें स्कोप में क्या क्या आता था, स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप में आता था जैसे कि कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन जावा पे बनाएंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, राइट, क्योंकि जावा की लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है। अगर आप ओरेकल जैसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राइट, ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या जेडीके यूज कर रहे हैं, ओरेकल जेडीके यूज कर रहे हैं, तो उसका लाइसेंस ही महंगा है कि नहीं। सो इट विल बी कॉस्टली। और यही चीज अगर आप मर्न और पीएचपी यूज करेंगे तो ये चीज बहुत आपको कम में मिल जाएगी। कम में कहने का मतलब बहुत यू नो कम पैसे में आपके साथ ये चीज, आप इस चीज को अचीव कर लेंगे, राइट। तो कहने का मुद्दा ये है कि जैसे जैसे समय इवॉल्व होता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती गई। लेकिन पता है अब ये जो आईटी टेक्नोलॉजी है ना, ये खत्म हो चुका है लगभग। आज करंट में ये अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बात किस चीज की चल रही है, अब हम जिस एरा में हैं, ठीक है, उस एरा को बोलते हैं डेटा टेक्नोलॉजी। डेटा टेक्नोलॉजी का कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपको पता है कि 2025, ठीक है, मतलब 2024 से पहले ही, मतलब 2025 के पहले ही ए आई बहुत ज्यादा हो रहा था, राइट। बट 2025 में बतेरे ए आई अब किसी को भी देखो सब एआई के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। And what everybody is talking about, ML, everybody is talking about data analytics, everybody is talking about, data engineering, everybody is talking about, agentic AI, RAG, right? Generative AI, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। माई क्वेश्चन एंड एजेंडा इज कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारी की सारी जो इंटायर फील्ड है, इनको ड्राइव कौन कर रहा है, इनको ड्राइव कर रहा है डेटा। तो कहने का मतलब, और ये जो, क्योंकि आप जितने भी ये सारे के सारे टर्म्स आपने सुना, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे डेटा इंजीनियरिंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, एमएल हो, ठीक है, डीप लर्निंग हो, न्यूरल नेटवर्क हो, इन सबको कौन ड्राइव करता है, इन सबको ड्राइव करता है डेटा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए टेक्नोलॉजी मैटर नहीं कर रही है, हमारे लिए मैटर करता है डेटा। और आपको पता होगा कि डेटा की जो कॉस्ट होती है, राइट, वो कितनी ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, कि जैसे आप बाजार में गए और आपका पर्स गिर गया, ठीक है, और उस पर्स में आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, आधार था, पैन था, एटीएम कार्ड था, राइट, आपके फोटोज थी, मतलब पासपोर्ट साइज फोटोज थी, ठीक है, और और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस था, वो सब था, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, अब तो डिजी लॉकर आ गया, लेकिन इससे पहले सब लोग वॉलेट में ही इस सबको रखते थे, राइट। नाउ पॉइंट क्या है कि अब आपका पर्स गिर गया और साथ ही साथ आपके पर्स में 10,000 रुपए भी थे। तो मुझे बताइए आप क्या करने वाले हैं अगर आपका वो पर्स गिर जाए,
तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा? आपका स्टेटमेंट तो यही होगा ना कि भाई जिसने भी मेरा पर्स लिया है, ठीक है, वो पैसे रख ले लेकिन मुझे पर्स लौटा दे, मतलब उसकी, यही कहते हैं आप लोग? यही आपका एजेंडा रहता है कि कुछ और, यही यही डिमांड रहता है, राइट? एवरीबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक दिस ओनली, कि पैसे रख ले, बट जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमको दे दे, राइट? क्यों? क्यों वो मांगा जा रहा है? बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। दे कैन नॉट बी, जब डेफिनेटली आप उसको दोबारा डुप्लीकेट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको पता है कि नहीं? ऑलमोस्ट लाइक अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं आपके, ठीक है, तो आधार तो आप नो डाउट 1 सेकंड में निकला सकते हो, ठीक है, बट पैन दोबारा निकलवाने में, डीएल दोबारा बनवाने में, है कि नहीं, डुप्लीकेट कॉपी के लिए भी आप एप्लीकेशंस, देन 10-15 दिन का टाइम, अप्रूवल, लॉट ऑफ थिंग्स, फिर दोबारा पैसा भी बर्बाद होगा, चक इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? सो तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं डेटा, राइट नाउ, और जो डेटा में जो अब जो इवॉल्व हो रहा है, राइट, डेटा से जो भी इवॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो जिस तरीके से डेटा अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ना, राइट, ये आने वाले नेक्स्ट 30 और 50 ईयर्स तक रहने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तब ये एरा तब तक चलेगा, और हो सकता है और इवॉल्व हो जाए, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, तो मॉरल ऑफ द, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो ये डिस्कशन का आउटपुट निकला कि हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजी है। एक होती है आईटी टेक्नोलॉजी, जो कि खत्म हो चुकी। अब हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है, राइट, अब हम जो मूव कर रहे हैं, वो डेटा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पूरा इवॉल्व हो रहा है, आईटी पूरा का पूरा जो इवॉल्व हो रहा है, वो डेटा टेक्नोलॉजी की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब जब हम डेटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये डेटा टर्म से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे एक सुनने को मिलेगा बिग डेटा, फिर एक आपको सुनने को मिलेगा डेटा वेयर हाउस, फिर आपको सुनने को मिलेगा डेटाबेस, फिर आपको सुनने को मिलेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर एक आपने और सुना होगा, यू नो समथिंग कॉल्ड एज डेटा साइंस, फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लाउड डेटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो डेटा वर्ड एक ही है, बट उसके अदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, करेक्ट। ओरेकल है, ठीक है, ओरेकल इज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, ओरेकल। ओके, सो डेफिनेटली राइट। तो बहुत सारी हायरार्कीज हैं, करेक्ट। तो उन्हीं हायरार्कीज में एक हायरार्की है जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो इस समय नंबर वन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस आ रहा है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स ओनली। ओके, एंड आई विल टेल यू समथिंग दैट कि लगभग लगभग दोनों का सिलेबस, फाउंडेशनल सिलेबस ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स बोथ आर कॉमन, ठीक है। डेटा साइंस एंड जो डेटा साइंस वाले लोग हैं, उनके लिए मशीन लर्निंग इज मैंडेटरी, जबकि जो डेटा एनालिटिक्स वाले हैं, उनके लिए मशीन लर्निंग इज ऑप्शनल, ठीक है। विल हैव द सेम सेशन ओवर बोथ फॉर बोथ ऑफ देम, बट कंसिडरेशन ये है कि आपको सब कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। सो एमएल इज मैंडेटरी फॉर डेटा साइंस, वेयर एज फॉर डेटा एनालिटिक्स पीपल, डेटा एनालिटिक्स वाले लोगों के लिए एमएल इज ऑप्शनल, ओके। सो डेटा साइंस वालों को पढ़ना है, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमको पढ़नी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट, so what will be the our goal for the today's discussion is to build the analytical mindset before touching the tools, ठीक है। इससे पहले कि हम टूल्स पे जाएं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जाएं, राइट, पाइथन पे जाएं, एसक्यूएल पे जाएं, एक्सेल पे जाएं, ठीक है, और विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई, इन सब पे जाएं, इससे पहले, इन टूल्स में जाने से पहले हमारा मेन फंडा रहेगा कि हम ये समझे लिटिल बिट ऑफ थियरी, ठीक है। आज का ही सेशन बस थियरी होने वाला है, इसके बाद फिर दोबारा कभी थ्योरी को हमें टच नहीं करना। हाँ, डेफिनेटली व्हेन विल बी कवरिंग सम एल्गोरिदम्स और सम टेक्निक्स, तब थोड़ा सा थियरी रहेगा, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा थियरी नहीं रहेगा, राइट। इसीलिए मैंने ये पहले से रेडीमेड करके रखा हुआ है, ताकि सिर्फ आपको इसको ओवरव्यू करना पड़े, ओके। आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मिल ही जाएगा वाया व्हाट्सएप, ठीक है। चलो, so व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिक्स, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स,
सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे पहले बोला कि हम सिर्फ अभी अभी सिर्फ एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे, हम टूल्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला है कि फर्स्ट विल फर्स्ट विल टॉक अबाउट एनालिटिकल माइंडसेट, देन टुमारो मीन्स आफ्टर कमिंग लेक्चर्स हम लोग टूल्स के बारे में बात करेंगे। और जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो एनालिटिक्स इज नॉट रिलेटेड टू एक्सेल फार्मूलाज, सीक्वल क्वेरीज, डैशबोर्ड्स, मॉडल्स। ठीक है, इन सब से रिलेटेड नहीं होता एनालिटिक्स का, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली ये टूल्स हैं जो हम वहां पे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एनालिटिक्स इज बियॉन्ड दिस। ठीक है, एनालिटिक्स इससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, जब ये टूल्स नहीं थे इससे पहले भी एनालिटिक्स एग्जिस्ट करता था। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, ये सब इंसाइट्स निकालते थे डेटा को यूज करके। ठीक है, तब भी एनालिटिक्स होता था। तो एनालिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट एक्सेल फॉर्मूलाज और SQL क्वेरीज और डैशबोर्ड्स। ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि डेटा एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेल फार्मूला, सीक्वल क्वेरीज, डैशबोर्ड्स नहीं है। ठीक है, ये इससे बढ़कर है। ठीक है, तो दीज आर वेपन्स, ठीक है, नॉट वॉर। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। सो फर्स्ट यू नीड अ माइंड सेट फॉर अ इंटायर वॉर। ठीक है, आपको वॉर कैसे होना है, मीन्स वॉर को समझने की कैपेबिलिटीज चाहिए, रेदर देन यूटिलाइजिंग वेपन्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको शकुनी की तरह सोचना है। शकुनी, शकुनी हु वाज द मेन कैरेक्टर इन महाभारता? सो शकुनी, करेक्ट, शकुनी द बिगेस्ट विलन ऑफ द महाभारत इज शकुनी। ठीक है, ही डिड नॉट एक्चुअली फाइट, लेकिन पूरा का पूरा रचने का काम, राइट, पूरा का पूरा जो माइंड था, माइंड मेकअप था, या पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था, राइट, वो किसने रचा था? मामा शकुनी ने रचा था। करेक्ट, सो इसीलिए रेदर देन यूजिंग वेपन्स, राइट, you should understand the war. So this is the entire agenda of analytics today's session. Okay, so let's start with something very basic question. What is data? So when we talk about data, so data क्या होता है? Any raw fact and figure without meaning। जरूरी नहीं है उसका कोई मीनिंग हो, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, इट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, इट शुड बी रिकॉर्डेड। अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ डेटा। समझ रहे हैं बात को? कोई ख्याल है आपके मन में, इट्स ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो डेटा नहीं है। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड एज डेटा। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो एनी रॉ, कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर, जरूरी नहीं उसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, लेकिन अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो इट इज अ डेटा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डेटा के बारे में बात करूंगा, व्हाट इज अ डेटा? सो एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर विदाउट मीनिंग बट कैन बी रिकॉर्डेड इज सेड टू बी अ डेटा। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100, 120, 90, 150। ओके, उनका अपना खुद का मीनिंग हो सकता है, बट हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है इसकी। ठीक है, तो हमारे स्कोप में इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। सो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज डेटा, बट कंडीशन इज कि इसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई, सो अगर इन सारे के सारे आप एग्जांपल्स को देखो तो ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप में इनका कोई अपना मीनिंग हो सकता है, बट हमारे लिए इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। सो फॉर अस इट इज नॉट अ डेटा। Okay, now coming on to the next part, then what is the data? Okay, so you know coming on, now जब इस डेटा में, राइट, इस डेटा में जैसे ही आप कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट हो गया, स्कोप हो गया, मीनिंग हो गया। जैसे ही आप इसमें कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग ऐड कर देंगे इस डेटा में, ऑटोमेटिकली दिस डेटा इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही आपने इस डेटा में कोई रिलेशन ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही किसी आप डेटा में कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, मीनिंग ऐड कर देते हैं, रिलेशन ऐड कर देते हैं, और मेक इट इंडिपेंडेंट, और मेक इट डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये किसी ना किसी मतलब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 150 ऑर्डर्स टुडे, ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई जो 150 ऑर्डर है या इनवाइसेस है ये आज आए हैं। तो इट इज क्लियरली स्टेटिंग, ओके, रेवेन्यू ड्रॉप बाई 12% लास्ट मंथ। सो ये जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, राइट, जितने भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं। ठीक है,
राइट। तो राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिटिक्स, राइट, सो एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन में जैसे ही आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डराइव इनसाइट्स और टू टेक डिसीजंस। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, लोग गूगल ट्रेंड्स को यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस समय व्हाट इज द हॉट टॉपिक राइट रनिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो लोग ट्रेंड्स क्यों देखते हैं, ट्रेंड्स इसीलिए पता लगाते हैं कि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में अभी क्या पॉपुलर हो रहा है, जिसके बेसिस पे दे कैन आइदर मेक वीडियोस, और दे कैन रिकॉर्ड्स कंटेंट्स, करेक्ट, ताकि उनकी रीच बन सके। सो बेसिकली ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करते हैं क्या है, तो एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं। तो किसी तरीके से हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। और इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, रिलेशंस निकालते हैं, राइट, यू नो कन्वर्जन्स करते हैं। ठीक है। ठीक है, लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिसेस रहती है जो कि हम करते हैं, ताकि उससे क्या कर सके, हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है। तो अगर हम डेफिनीशन पे जाएं, ओके, सो दिस इज इंटरव्यू सेफ डेफिनेशन, दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डायरेक्टली इस डेफिनेशन को डायरेक्ट रट के चिपका सकते हैं। तो वेरी सिंपल, सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग। सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स क्यों चाहिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, डेटा एनालिस्ट क्यों चाहिए होते हैं, आईटी एनालिस्ट, इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। सम पीपल आर कॉल्ड रिस्क एनालिस्ट, सम पीपल आर कॉल्ड रिसर्च एनालिस्ट, some people are called स्टैट्स प्रोफेशनल। ठीक है, अलग अलग नाम नाम हो सकते हैं, बट कोर उनका जो है एनालिटिक्स ही होता है। ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो डेटा एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा से जो इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी बिजनेस में कोई डिसीजन के लिए हम लोग यूज किया जा सके। अब ये डिसीजन बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कंट्री के बारे में बात करें, मतलब डिफेंस के बारे में बात करें, राइट, तो डिफेंस में नेशनल सिक्योरिटीज को लेके, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। व्हेन इट कम्स टू वेदर फोरकास्टिंग, राइट, वेदर फोरकास्टिंग आपको पता होगा, इंडिया इज ऑलवेज मतलब इंडिया का वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहा है, राइट। सो डेटा पे ही तो ये लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना होती है कि नहीं। सो बेसिकली इट्स स्टडिंग द ट्रेंड्स एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा। ठीक है, तो उससे जो इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे ये लोग ना डिसीजंस लेते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जैसे कि ग्रेविटॉन हो गया, टावर रिसर्च कैपिटल हो गया। ठीक है, जिनमें सेकंड्स में सारा सारा जो आप में से अगर कुछ लोग ट्रेडिंग या स्टॉक्स में होंगे, तो उन्हें पता होगा कि राइट सेकंड्स का गेम होता है, राइट, एंड आपका पैसा बन डबल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कि नहीं। तो तो यू नो तो पीपल हायर दीज पीपल, ठीक है, ताकि वो जो डेटा का ट्रेंड है उसको देखकर डिसीजन ले पाए। ठीक है, और उस डिसीजन पे पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो रिलाई करता है। ठीक है। नाउ, सो हमेशा याद रखिएगा आपको, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आप हमेशा अपने पॉकेट में रखेंगे। कीप दिस लाइन इन योर पॉकेट, दैट मीन्स ये लाइन आपको रट्टा मार के रख लेनी है। ठीक है। तो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। ठीक है। नाउ, टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक एनालिटिक्स पे जाते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, मतलब डेटा एनालिटिक्स के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स होते हैं। जैसे पहले का नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। दूसरे का नाम है, ठीक है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ठीक है, तीसरे का नाम है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और चौथे का नाम है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको आई विल पुट ऑल टुगेदर।
Okay. So coming on to the first one is descriptive analysis. The second one is diagnostic analysis. The third one is, you know, the third one is predictive analysis, and fourth one is प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपसे पूछा ही जाएगा, 100% पक्का है। अगर इंटरव्यू में डेटा एनालिटिक्स के में जाएंगे तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि एनालिटिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार टाइप के एनालिटिक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, द सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, द थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एनालिटिक्स है उसमें दो ऑर्डर है। अगर आप देखोगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज 2D 2P प्रिंसिपल। 2D 2P प्रिंसिपल, ओके, 2D 2P प्रिंसिपल। मतलब तो अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है 2D 2P प्रिंसिपल या 2D 2P एनालिटिक्स के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। बट पीपल आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड सो दैट यू कैन यू नो ट्रिक करने के लिए पीपल आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड 2D 2P प्रिंसिपल। तो 2D 2P इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें दो वर्ड डी वाले हैं और दो वर्ड पी वाले हैं, राइट। तो दो वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, तो पहला इज डिस्क्रिप्टिव, द सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। द थर्ड वन इज प्रिडिक्टिव एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, जब भी प्रिडिक्शन करना हो इट इज ऑलवेज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्शन देना हो, जैसे मेडिकल में आप डॉक्टर से क्या लेते हैं, रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, राइट। सो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तो आप ऐसे याद रखते हैं कि जैसे डॉक्टर से अगर प्रिस्क्रिप्शन लेना हो तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है, कोई चीज प्रिडिक्ट करनी हो तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना हो तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और किसी चीज को डायग्नोस करना हो यू नो तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ओके, तो आई बात समझ में, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में डेटा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, लास्ट मंथ की सेल कितनी थी, वेबसाइट का ट्रैफिक कितना था, ठीक है, टोटल कस्टमर का चर्न रेट कितना था। ठीक है, तो इसमें टूल्स कौन कौन से यूज होंगे आपके लिए, टूल्स आपके यूज होंगे, एक्सेल यूज होगा, ठीक है, एसक्यूएल यूज होगा और डैशबोर्ड यूज होगा। जब मैं डैशबोर्ड कहता हूं तो ऑलवेज रिमेंबर पावर बीआई और टैबलो की बात की जा रही है। ठीक है, पावर बीआई या टैबलो। ठीक है, पसंद में आ गई। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम पूछते हैं क्या हुआ था, ये क्या हुआ, सीधी सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम पूछते हैं व्हाट, व्हाट क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन दैट इट आंसर्स इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो जैसे आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको ये पूछना है कि क्या हुआ, राइट। और इसमें जो टूल्स होंगे वो एक्सेल होगा, सीक्वल होगा और डैशबोर्ड्स यूज किए जाएंगे। ठीक, राइट। फिर आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है, या मान लीजिए कि आपके जैसे एक्ने हो रहे हैं, राइट, जैसे बहुत से लोगों के में होता है, लाइक स्किन्स में रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्किन डिसीज मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है, या कोई कोई जैसे मेडिकल पैटर्न होता है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे फॉर एग्जांपल बुखार की बात करते हैं, तो बुखार नॉर्मल अगर वायरल फीवर होता है तो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, बॉडी आपकी आराम से उसको आपका जो नर्वस सिस्टम होगा उसको ऑटोमेटिक किल कर देगा। ठीक है, 2 3 दिन की रेस्ट वगैरह में। लेकिन अगर आपको बुखार 3 दिन 4 3 दिन से ज्यादा आ रहा है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हफ्ता भर हो रहा है, आ रहा है, उतरता है लेकिन फिर आ जाता है, तो उस केस में फिर डायग्नोस किया जाता है ना। फिर आपके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, टाइफाइड के लिए, या आपका सीबीसी कराया जाता है। आपने देखा होगा टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि पता चल सके कि भाई मलेरिया तो नहीं है, कहीं डेंगू तो नहीं है, राइट, कहीं कहीं जो है टाइफाइड तो नहीं निकल आया। टाइफाइड के लिए विडॉल कराते हैं, ठीक है। सीबीसी अगर आपका ब्लड काउंट्स में प्लेटलेट्स घट गई हैं तो पता चल जाता है कि भाई आपके जो है बेसिकली सिम्टम्स के बारे में डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्नोसिस एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस एनालिटिक्स में हम रूट कॉज पता करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई डिड इट हैपन। ओके, सो
इसमें तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल रूट कॉज व्हाई डिड इट हैपन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि सेल्स ड्रॉप्ड बिकॉज नॉर्थ रीजन अनपरफॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में चार डिविजन्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और जब ओवरऑल कंपनी ने सेल देखी तो पता चला, डायग्नोस्टिक एनालिस्टिक में क्या पता चला, डायग्नोस्टिक एनालिसिस में ये पता चला कि भाई ओवरऑल सेल इसलिए कम है क्योंकि इस साल सबसे, या इस क्वार्टर में ओवरऑल सेल्स इसलिए कम है क्योंकि जो नॉर्थ वाले पीपल थे, ठीक है, नॉर्थ वाले पीपल, जो नॉर्थ वाले सेंटर के जितने भी सेल्स डिवीजन के लोग थे, उन्होंने सेल्स कम की। इसीलिए क्योंकि सेल्स कम की तो ओवरऑल जब हम लोगों ने चारों मींस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जोन्स का जब तो ओवरऑल सम देखा, तो ओवरऑल सेल्स भी कम आई। क्यों कम आई? क्योंकि नॉर्थ वाले लोगों ने सेल्स कम की थी। इसी तरीके से चर्न रेट इंक्रीज बिकॉज द प्राइस इंक्रीज। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की था ना कि 20% ऑफ द कस्टमर का चर्न रेट बढ़ा था, तो वो क्यों बढ़ा था, राइट? तो इसमें रीजन पता चलता है कि चर्न रेट बढ़ा क्योंकि प्राइस बढ़े, राइट? तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें क्या टूल्स यूज करते हैं, तो बेसिकली सीक्वल यूज होगा इसमें। और इसमें एक्सेल पिवट यूज होगा, और ड्रॉप डाउन एनालिसिस, ड्रिल डाउन एनालिसिस यूज होता है, ड्रॉप एंड ड्रिल। ठीक है, तो ड्रॉप ड्रिल, बेसिकली ड्रिल डाउन एनालिसिस होता है, वो हम देखेंगे जब पावर बीआई करेंगे। तो उसमें ड्रिल डाउन एनालिसिस होता है। उस ड्रिल डाउन एनालिसिस में, राइट, वी ट्राई टू कवर इट अप। ओके, फिर आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। सर व्हाट इज दिस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्वेश्चन इट क्वेश्चन इट आंसर्स इज व्हाट इज लाइकली टू हैपन। ओके, मतलब ट्रेंड बेसिकली पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा होने की चांसेस है। व्हाट इज लाइकली टू हैपन मतलब चांसेस क्या है, मतलब बेसिकली समथिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेंड एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअल हैपन। तो मैंने कहा ना प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, तो बेसिकली हम इसमें ट्रेंड को देखते हैं और ट्रेंड ट्रेंड को देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नुमान सही कह रहे हैं। नुमान कह रहे हैं कि यूजिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करेक्ट। तो बेसिकली जो हिस्टोरिकल डेटा होता है ना, स्नैपशॉट्स होते हैं, इनको बेसिकली स्नैपशॉट्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, मतलब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, स्नैपशॉट डेटा, ठीक है, मैं ये वर्ड बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे लूप बैक डेटा, मतलब इनका नाम है ये, ठीक है, मतलब लूप बैक डेटा भी बोलते हैं इसको, लूप बैक डेटा, या इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, या और स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डेटा, ये समटाइम्स इसको मेटा डेटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा, लूप बैक डेटा, स्नैपशॉट डेटा, मेटा डेटा, राइट, इस तरह की चीजें निकालनी होती है ना, तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये बेसिकली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? These are used to these are used to identify the ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करें इसमें क्या टूल्स होगा, तो इसमें टूल यूज होगा पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, है ना, यहाँ पर एमएल मॉडल्स का भी बहुत बड़ा रोल होगा। फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बेसिकली ये होता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट, व्हाट प्रोसेस यू शुड फॉलो, सो व्हाट शुड वी डू, राइट। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि जैसे सेल्स बढ़ानी, तो जैसे मान लो गिव डिस्काउंट्स टू द हाई रिस्क कस्टमर्स, ठीक है, इंक्रीज स्टॉक्स फॉर फास्ट सेलिंग आइटम्स। तो इसमें जो टूल्स यूज होते हैं उसमें बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एमएल्स, और थोड़ा सा बिजनेस रूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं ताकि आप जो है बेसिकली यूज कर पाए। नाउ अब हम बात करते हैं, तो व्हाट इज गोल्डन रूल? तो पता है रूल क्या है? तो पूरा पूरा जो गोल्डन रूल है वो ये है, ज्यादातर जितनी भी मोस्ट डेटा एनालिटिक्स जॉब है, ठीक है, मार्केट में जितनी भी डेटा एनालिटिक्स की जॉब है, उसमें आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्टिव प्लस डायग्नोस्टिक, ये दोनों तरह के एनालिटिक्स पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया कि जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, राइट, वो किस पे है? वो है डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा है डायग्नोस्टिक। तो मतलब 70%, मतलब आप ऐसे मान लो कि 30%, 30% जो वेटेज है वो डिस्क्रिप्टिव का है, और जो 70% वेटेज है वो डायग्नोस्टिक का है, बिकॉज हर इंसान को रीजन जानना होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आपका जो रोल रहेगा, तो जो गोल्डन रूल है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो यही है
कि ज्यादातर डेटा एनालिटिक्स की जॉब में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स पे ही बात की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स, एमएल वर्सेस एआई। ठीक है। ठीक है, तो यहां पर मैंने टर्म लिखा है। ठीक है, और ये उसका मीनिंग लिखा है। टर्म लिखा है, मीनिंग लिखा है, टर्म लिखा है, मीनिंग लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, तो अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स की, तो डेटा एनालिटिक्स में मैंने क्या बताया कि पास्ट एंड प्रेजेंट इनसाइट्स, ठीक है, के बारे में जब स्टडी करना होता है तब हम यूज करते हैं किसके बारे में, तब हम पढ़ते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा साइंस में होता है एनालिटिक्स प्लस प्रिडिक्शन। मतलब अगर आप एनालिटिक्स प्लस प्रिडिक्शन को मिला दो तो वो डेटा साइंस बन जाएगा। ठीक है, यही चीज अगर हम मशीन लर्न मतलब मशीन लर्निंग की बात करें, तो मशीन लर्निंग में कुछ नहीं होता। जो हमारे मॉडल्स होते हैं, राइट, मतलब बेसिकली जो हमारा मशीन होता है, जो बॉट होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई, मतलब डेटा में जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उससे सीखता है। मतलब जो डेटा में जो पैटर्न्स, मतलब डेटा को रीड करके, ठीक है, बेसिस में बेसिकली मतलब पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, ह्यूमन इंटरवेंशन लर्निंग के लिए बस होता है। मतलब ह्यूमन क्या करेगा, इसको डेटा देगा, राइट, और डेटा के बेसिस पे, हाँ, डेटा के बेसिस पे जो हमारा बॉट होगा, जो मशीन होगा या जो स्क्रिप्ट होगा, वो बेसिकली डेटा से क्या करेगा, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और एआई में क्या होता है, एआई में हम लोग डिसीजन मेकिंग सिस्टम, बेसिकली हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो बेसिकली डिसीजन ले सके या ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, जैसे ह्यूमन डिसीजन ले पाता है ना, वैसे। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी, प्लीज कंफर्म, एक बार ये इतना कंफर्म कर दीजिए, इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी और नॉट। राइट, अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट, इफ नॉट आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, सो लेट कंटिन्यू। तो एनालिटिक्स इज फाउंडेशन ऑफ, मोहम्मद आरिफ इज आस्किंग कैन यू प्लीज रिपीट द डिस्क्रिप्टिव। यार, डिस्क्रिप्टिव में क्या बताया मैंने, डिस्क्रिप्टिव में बताया कि व्हाट हैपन, डिस्क्रिप्टिव में वी ट्राई टू लाइक, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन, राइट। डिस्क्रिप्शन का मतलब वो बेसिकली स्टेट द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रखते हैं सामने कि भाई क्या हुआ था एक्चुअल में, राइट, व्हाट हैपेंड, वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल रीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बस हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, सम इवेंट ऑकर्ड, बस, खत्म। ओके, वी डोंट, हाँ, वी डोंट ट्राई टू हम उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करते। अगर आपने क्यों पूछ लिया, अगर आपने पूछ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, यू आर आस्किंग मी आयान। हाँ जी, डेफिनेटली, ओरेकल इज अ बिग नेम। ठीक है, एज फार एज, मतलब अगर आप डेटाबेसेस की तरफ जाएंगे तो मार्केट में उससे अच्छा डेटाबेस सिस्टम्स किसी के पास नहीं है, राइट। बाकी वी हैव आईबीएम एज वेल, बट आईबीएम इंटरप्राइज पे ज्यादा फोकस करता है, राइट। बट अगर आप कोई एक नॉर्मल छोटा से एंटरप्राइज से लेकर बड़ा से बड़ा एंटरप्राइज ओरेकल के पास ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप डेटाबेसेस पे जाओगे ना, ठीक है, तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही बंदे के पास है और वो है ओरेकल, और किसी के पास नहीं है। ठीक है,
वो भी उन टर्म्स ऑफ आरटीपीएमएस। ओके जी। हाँ, तो मैं आसिफ को बता रहा था कि जैसे आसिफ, आपने आपसे मैंने आपको मैंने बोला कि आ, कि आप डिस्क्रिप्टिव में जैसे पूछ रहे थे ना, तो मैंने अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी और उस आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, तो वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालिसिस हो गया। लेकिन जैसे ही आपने उसमें क्वेश्चन मार्क बोल दिया कि सर ऐसा क्यों, राइट, तो वो डायग्नोस्टिक हो गया। आपने उसमें कुछ प्रोडिक्शन देना चालू कर दिया, ठीक है, ट्रेंड्स को देखना चालू कर दिया, ट्रेंड्स के बारे में बात कर दी, और आपने बोल दिया कि यार आपको क्या लगता है ऐसा क्या आगे आगे क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, धुरंधर मूवी देखी है आप लोगों ने? सबने? सबने धुरंधर मूवी देखी? आपने देखा होगा कि लास्ट में, आपने देखा होगा कि जो लास्ट लास्ट में जो वो लिस्ट दिखाते हैं ना, रणबीर कपूर जो लास्ट में लिस्ट दिखाते हैं, उस लिस्ट में रहमान टकैत का नाम नहीं था। था कि नहीं था? नहीं था। उसने अपने से लिखा। अच्छा। तो स्पॉइलर ना दूं, करेक्ट? नहीं लेकिन भाई तुमको सस्पेंस की पड़ी, मुझे अपने डेटा एनालिटिक्स की पड़ी है, तो मुझे इससे बेटर बेटर एग्जांपल नहीं मिला। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप जब तक आप 1 मिनट के लिए मतलब कान ऐसे बंद कर लो, ठीक है? तो ठीक है, तो देख लो, आज आज ही जाके देख लो, 11 बजे जाइए, सुबह 4 बजे आइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लास्ट की जो लिस्ट थी उसमें रहमान डकैत का नाम नहीं था, उसने अलग से ऐड किया, ठीक है? तो अब आपने सिर्फ ये बता दिया कि उसने अलग से ऐड किया, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? क्यों किया? डायग्नोस्टिक। क्यों किया? डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है? अब क्यों किया, उसके बेसिस पे आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन प्रेडिक्ट। अब आगे क्या होगा, सेकेंड पार्ट जो उसका आ रहा है, उसमें क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? और प्रिस्क्रिप्शन, उस प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि आगे अब क्या करना चाहिए, ठीक है? सो बहुत सिंपल एग्जांपल है। लेट्स, ओके, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बस ये बात याद रखना कि जब भी आपसे कोई प्रोडक्टिव के लिए बोले, तो प्रोडक्टिव में हमेशा याद रखना कि लूप लूप बैक एपीआई, मतलब लूप बैक डेटा, मतलब जब भी आप हिस्टोरिकल, जब भी आप ट्रेंड्स की बात करेंगे ना, ठीक है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट ट्रेंड्स, ठीक है, तो ट्रेंड्स में आपको हमेशा लूप बैक, ट्रेंड्स में हमेशा आपको लूप बैक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, स्नैपशॉट डेटा, मेटा डेटा, इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है? बस ये बात आप याद रखना। ये सब नाम है इसके, ठीक है? चलो, राइट, तो इसमें मैंने टूल्स की बात कर रहे थे, तो टूल्स की अगर हम बात करें, तो इन टूल्स इन दिस वी ट्राई टू यूज ऑप्टिमाइजेशन, एमएल प्लस बिजनेस टूल्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं अब, राइट, अब हम आपको यहां पर मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी, तो केस स्टडी बहुत सारी यूज होंगी, राइट, क्योंकि एनालिटिक्स है, तो केस स्टडी बहुत सारी होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एनालिटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं रियल लाइफ एनालॉजी आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट सेल्स मोस्ट ऑन द वीकेंड्स, ठीक है, अगर स्विगी की अगर एग्जांपल बोले, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इसमें क्वेश्चन पूछा कि व्हाट सेल्स मोस्ट ऑन द वीकेंड्स, मतलब स्विगी स्विगी अगर स्विगी के बिजनेस केस के बारे में बात किए, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्विगी से? स्विगी के जो स्टैक बोर्ड ओनर्स हो सकते हैं, वो क्या पूछेंगे स्विगी से कि भाई वीकेंड्स में ये बताओ सबसे ज्यादा आपके में से क्या बिकता है? सेम क्वेश्चन गोज फॉर जोमेटो एज वेल, ठीक है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, स्विगी वालों से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से, कौन सी सिटी से कैंसिल होते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद डिलीवरी टाइम वर्सेस कस्टमर रेटिंग, मतलब आप
जिस हिसाब से डिलीवरी करते हैं, राइट, उस हिसाब से कस्टमर आपको क्या फीडबैक देता है, क्या क्या रेटिंग्स मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अमेजोन के लिए बात करूं, तो कहने का मतलब ये है ना, जब भी कोई भी आप बिजनेस की बात करोगे, तो हर बिजनेस में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता होगा। उन सारे के सारे बिजनेस का आंसर देने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एनालिटिक्स। ठीक है, चाहे वो आप लोअर लेवल पे करो, चाहे हायर लेवल पे करो, चाहे मिड लेवल पे करो, लेकिन एनालिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा अगर कोई भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसीलिए डेटा कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब सोचो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पता है कौन होगा? इस तरह के क्वेश्चंस जो मालिक होगा स्विगी के या जोमेटो के, जो मालिक होंगे दीपेंद्र गोयल, ठीक है, इस तरह वो मान लो उसने अपने मैनेजर से पूछा होगा कि भाई ये बताओ, इस पर्टिकुलर रीजन से पूरी सेल, मतलब जब आप डैशबोर्ड बनाते हो ना, तो डैशबोर्ड में जैसे उसने सेल्स का ग्राफ देखा, तो उसने 10 रीजन उठा लिए। ठीक है, अपने टॉप 10 शहर उठा लिए, जिसमें से लखनऊ है, कानपुर है, ठीक है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव, मतलब ऐसे उठा लिए, राइट, उसने रैंडम। और उसमें देखा कि यार लखनऊ का सबसे ज्यादा है, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन कानपुर का अगर सबसे कम है, तो पूछा जाएगा कि भाई ये कानपुर का सबसे कम क्यों है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस उठेंगे। तो जहां जहां भी क्वेश्चंस उठेंगे, जाहिर सी बात है एनालिटिक्स वाले से पूछा जाएगा कि भाई क्या वजह हो सकती है। तो फिर आपको उसमें एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ सकती है, कुछ कोड लिखना पड़ सकता है, डेटा को स्टडी करना पड़ सकता है कि भाई ऐसा देखें जरा क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। तो ये बिजनेस यूज केसेस के क्वेश्चंस जो है ना, हर जगह आ सकते हैं। इसी तरह अमेजोन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमेजोन अमेजोन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब अमेजोन के जो बोर्ड ओनर्स हैं, सीईओज हैं, राइट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रिटर्न होता है। तो अगर हम वो पॉइंटर्स आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, तो काम खत्म, है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ में आता है, अब जैसे, सॉरी, नेटफ्लिक्स का भी यूज केस था ना, नेटफ्लिक्स को इस पे रखते हैं, इस नेटफ्लिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज्यादा सेलर्स, अब जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। तो ये पता करने के लिए कि भाई विच सेलर इज सबसे ज्यादा रिस्की, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो फ्रॉड करते होंगे, बहुत सारे बायर्स होते होंगे जो फ्रॉड करते होंगे। तो पता लगाना है कि कौन सा सेलर सबसे ज्यादा रिस्की है, कौन सा बायर सबसे ज्यादा रिस्की है। ठीक है, और विच आइटम इज प्रमोट, ऐसा कौन सा जिसकी सेल्स सबसे कम है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, उसको ट्रेंडिंग में दिखाना चाहिए ताकि सेल्स बढ़े, है कि नहीं? इसी तरह नेटफ्लिक्स में आ जाएं, तो नेटफ्लिक्स में कोई पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, 9 बजे के बाद, ठीक है, ये संडेज में, वीकडेज में सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर्स कस्टमर्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, या जो है व्हाट यूजर्स वॉच आफ्टर 9 PM, ठीक है, 9 बजे के बाद कितने ऐसे यूजर्स हैं जो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, राइट। फिर इसके बाद वाई यूजर्स कैंसिल सब्सक्रिप्शन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नेटफ्लिक्स सबके पास है, लेकिन कुछ लोग नेटफ्लिक्स लेते हैं और इसके बाद उन्होंने बंद कर दिया नेटफ्लिक्स देखना। तो जनरली पता है, आप जब आप एनालिटिक्स की बात करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, जब भी आप डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, आपको दोनों चीजें आना चाहिए, टेक भी आना चाहिए, ठीक है, प्लस बिजनेस भी आना चाहिए। आपको बिजनेस का ज्यादा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, रेदर देन टेक। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस नहीं समझेंगे, आपको टेक समझ में ही नहीं आएगा, मतलब टेक आपको कितना भी आता हो, उसका कोई यूज केस नहीं है। इसीलिए आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, एनालिटिक्स के साथ साथ। तो इसीलिए सबसे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट एनालिटिक्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द इंटायर बिजनेस। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कल टीसीएस आ रही है, ठीक है, अब टीसीएस तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो कैसे काम करती है वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है आपकी, ठीक है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लेते हैं, जैसे एमएक्स ले लेते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस। सो हाउ अमेरिकन एक्सप्रेस वर्क्स, ठीक है, या ओरेकल ही आ रही है, तो आपको जानना होगा कि ओरेकल का बिजनेस क्या है, ठीक है, किस किस डोमेन पे वो काम करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पूरा डोमेन जानो, राइट, क्योंकि एक कंपनी के बहुत सारे वेंचर्स होते हैं, वो बहुत जगह से अर्न कर रही होती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट में आप, जिस टीम में आप जा रहे हो, ठीक है, उस टीम में, जिस टीम में आप जा रहे हो, आपकी टीम जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, आपको बिल्कुल उसका सब कुछ आइडिया होना चाहिए, और जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले, क्योंकि जब आप लर्निंग कर रहे होगे उस वक्त आप क्वेश्चन, बिजनेस को सीखने के लिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पहले आपकी तरफ से क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। जब एक बार आप क्वेश्चंस, जब आप उस क्वेश्चंस के थ्रू आप सारा का सारा बिजनेस फ्लो समझ जाएंगे,
ठीक है, देन आप उसमें टेक्निकल चीजें आप लगा पाएंगे, करेक्ट। तो आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है, ठीक है, ये थिंकिंग क्वेश्चन है कि बेसिकली याद रहे ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इफ सेल्स ड्रॉप 20%, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क फॉर टचिंग द डेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूं, ठीक है, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और मैंने आपको बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है, और उसकी जो सेल्स है वो 20% गिर जाती है, समझिएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि एक सेल है, उसकी 20% सेल्स जो है गिर जाती है। तो अगर उसकी सेल्स 20% गिर जाती है एक्स वाई जेड लिमिटेड की, तो क्या क्या रीजंस होंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस के लिस्ट बनाने हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछेंगे, राइट। इसके सॉल्यूशंस, मतलब पहले आप इसके सॉल्यूशंस, मतलब पहले आप इसके खुद से क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी आंसर की भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे, क्या इस मतलब जो पॉसिबल आंसर्स की लिस्ट है, क्या उससे वो आपके क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, क्या आपने क्वेश्चंस वैलिड पूछा था। अगर आपकी वो थिंकिंग है, तो यू कैन डेफिनेटली यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब आंसर आंसर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट रीजन, मैं आपको देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, व्हाट रीजन हो सकता है, व्हाट टाइम चेंज, व्हाट टाइम पीरियड, ठीक है, फिर इसके बाद एनी प्राइस चेंज, ठीक है, फिर इसके बाद एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा एनालिटिक्स एनालिटिक्स मतलब जो डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट होते हैं उनकी तरह सोचना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज है, ठीक है। इस तरह तो इसी तरीके एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन और रीजन के, लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली प्लीज करिएगा, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना you'll बिकम हैंडी, ठीक है। तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस रहेंगे, बिजनेस केस स्टडीज रहेंगी, तो आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपको मिलेगा। नाउ लेट्स कम नाउ लेट्स सी हाउ एनालिटिक्स एक्चुअली वर्क्स इन द कंपनीज, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, और ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कैसे कंपनीज में, मैंने आपसे बताया ना कि जब आप डेटा एनालिटिक्स में जाते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स में आपको टेक प्लस बिजनेस दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट बिजनेस के आइडिया तो आपको होना ही चाहिए, टेक तो चलो आप 10 दिन में नहीं आ रहा, आप सीख लोगे, लेकिन जब तक आपको बिजनेस एनालॉजी नहीं पता होगी, तो आप कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब तक आप अपने कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, यू विल बी ऑलवेज इन रिस्क ऑफ लूजिंग योर जॉब, ठीक है। तो एनालिटिक्स में सबसे इशू ये है कि जो जितने भी लोग एनालिस्ट की तरह काम करते हैं ना, और किसी रोल में काम हो ना हो, मुश्किल, ठीक है, चलेगा। वेब डिजाइनर ने अगर वेब पेज नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके मैनेजर के पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जो मालिक है ना वो ये 4 क्वेश्चंस उन्होंने उन्होंने पूछा है कि भाई इस बार की सेल्स क्यों कम आई है, मुझे पता लगा के बताओ, तो वो आपसे मैनेजर से पूछेगा। और यू एज एन इंजीनियर, यू एज एन डेटा एनालिस्ट अंडर हिज हिज मैनेजर, वो आपकी जान खा जाएगा जब तक उसको इसका आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ऊपर कोई बैठा हुआ है जिसको जानना है कि क्या रीजन है, सेल्स क्यों कम आई है, राइट। तो एज एन डेटा इंजीनियर बहुत अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, तो फिर आपको दिन रात एक करके, आपको टेक नहीं भी आता है, आप चैट जीपीटी करके टेक से कर लो, आपको क्वेरी लिखना नहीं आता, आप चैट जीपीटी से क्वेरी ले लो, इतना आप कर सकते हो, लेकिन आपको टेक की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर टेक सॉरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट टू बी अ डेटा एनालिटिक्स, फर्स्ट यू हैव टू बी अ बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि इन ऑर्डर टू बी अ डेटा एनालिस्ट, फर्स्ट यू शुड बी अ बिजनेस एनालिस्ट, मतलब आपको बेसिकली बिजनेस के बारे में सारा की सारी अप्स एंड डाउन्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वंस यू यू कैन रिलेट, एक बार आप बिजनेस समझ चुके हैं, फिर आप उसमें टेक इन्वॉल्व करिए, फिर देखिए कितना बढ़िया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो व्हाट इज एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, है ना, पूरा एंड टू एंड हमको पढ़ना है, एनालिटिक्स लाइफ साइकिल होती क्या है। तो स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप स्टेप प्रोसेस है इसमें। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है।
तो ठीक है, तो स्टेप वन में बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ले लिया, आई नीड अ डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर आपके मैनेजर ने कह दिया कि मुझे एक डैशबोर्ड चाहिए, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो होना चाहिए। बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस प्रॉब्लम है कि कस्टमर क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका मैनेजर, मान लो आपके मैनेजर आए और उन्होंने कहा, ए मिस्टर यू एबीसी, क्या आप एक काम कर सकते हो, मुझे एक डैशबोर्ड बना के दो। तो इससे पहले कि आप, वो आपसे ये क्वेश्चन कहे कि आप मुझे ये डैशबोर्ड बना के दो, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि सर, डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है समझ गए, जैसे उन्होंने बोल दिया सेल्स फनल बनाओ। अब आपको पता ही नहीं है सेल्स फनल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स क्या है, फनल क्या है, ठीक है, बिजनेस की रेलेवेंसी क्या है, सेल्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप ले रहे हैं, वो सब कुछ आपको, यू हैव टू थिंक एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, ओके। सो बेसिकली, तो बिजनेस प्रॉब्लम को स्टेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस केस। तो यहां पर अगर आपसे जैसे कोई क्वेश्चन बोला गया, तो उस क्वेश्चन को बेसिकली आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, रेदर देन टेक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या बोला, इसने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि भाई मेरे लिए एक डैशबोर्ड बना दो। ठीक है, एक स्क्रीन बना दो, सेल्स फनल की स्क्रीन बना दो, मान लो उसने बोला आपके मैनेजर ने। आपको ये क्वेश्चन नहीं, आप ठीक है आप बनाओगे क्योंकि आप टेक्निकल एंड टेक 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 वाले बंदे हो, आपको डेफिनेटली वही काम करना है। बट रेदर देन दैट, ठीक है, आपको सबसे पहले ये पूछना है कि ठीक है सर, आप सेल्स फनल बोल रहे हो, तो सेल्स फनल में सर व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी लाइक सर, व्हाट आर द व्हाई व्हाई आर द कस्टमर लिविंग। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है ना क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, व्हाई आर द कस्टमर लिविंग, आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा एनालिसिस की कैटेगरी में ये आ रहा है? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव? क्या लग रहा है? डायग्नोस्टिक, करेक्ट। तो ये आइडेंटिफाई अगर आप कर पा रहे हो, तो यू हैव दैट एनालिटिकल स्किल। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहा ना कि रीजन जानने की कोशिश कर रहा है वो सामने वाला बंदा, राइट? तो डायग्नोस्टिक एनालिस्टिक एनालिसिस में लगेगा, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना। अब दूसरा स्टेप में जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो भाई आप ये सोचो कि डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है। डेटा आपको जेसन के फॉर्मेट में मिल सकता है, जेसन आपको सीएसवी के फॉर्मेट में मिल सकता है। हम एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर जितने भी लोग मार्केट में डेटा एनालिटिक्स सिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, वो सीएसवी और एक्सेल के साथ सीधे सीएसवी और एक्सेल खोल के बैठ जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सीएसवी और एक्सेल के साथ काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम सीएसवी और एक्सएलएस के साथ भी काम करेंगे। बट ये आपको ये बात याद रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सीएसवी और एक्सेल सिर्फ ही डेटा सोर्स नहीं है। डेटा सोर्स मल्टीपल जगह से आ सकता है। ईटीएल पाइपलाइन से डेटा आ सकता है, ठीक है, S3 बकेट से डेटा आ सकता है, किसी एपीआई से डेटा आ सकता है, कि किसी मतलब डेटाबेस से डेटा आ सकता है। ठीक है, डेटा वेब स्क्रैप करके आ सकता है, मतलब किसी वेबसाइट से चुरा के डेटा स्क्रैप करके आप डेटा ले सकते हो। टीएक्सटी फाइल्स में डेटा मिल सकता है, लॉग फाइल्स में डेटा मिल सकता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल सकता है, रॉ फॉर्म में मिल सकता है, एक्सएमएल के फॉर्म में मिल सकता है, पार्केट फाइल्स में मिल सकता है। ठीक है, टून्स के फॉर्म में मिल सकता है, टोकन्स के फॉर्म में मिल सकता है। मतलब आप डेटा सोर्स को नहीं, आपको मतलब बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि ये डेटा ऐसे क्यों दे दिया, हमें तो ऐसे ही सिखाया गया है। तो बेसिकली आपको डेटा सोर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जब आप डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो बिल्कुल बिल्कुल नोमान, उसमें नो मतलब उसमें स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, हर टाइप का डेटा आ सकता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जब डेटा कलेक्शन की बात की जाएगी, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स, और टाइप आपको पता लगाना है कि भाई डेटा किस टाइप में आ रहा है। ठीक है, जब तक आपको ये पता ही नहीं रहेगा, तो आप डेटा को, आपको पता है, जब आपको पता ही नहीं कि डेटा का सोर्स क्या है, डेटा किस टाइप का आ रहा है, तो फिर आप उसमें उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है, उसको क्लीन कैसे करोगे, सेग्रीगेट कैसे करोगे? है कि नहीं? तो दूसरा काम है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इज डेटा कलेक्शन एंड ऑल्सो द डेटा। जब आप डेटा कलेक्शन की बात करोगे, तो यू शुड बी इन द पोजीशन टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस, कि कहाँ कहाँ, व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज एक्चुअली कमिंग, वेदर द डेटा इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेसेस। जब मैं डेटाबेस की बात करता हूँ, तो डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओरेकल से आ सकता है, माई एसक्यूएल से आ सकता है, पोस्टग्रेस से आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस। तो अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ा दी, ठीक है, और डेटाबेस
मोंगोडीबी यूज होने लगा। तो आप लड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे कि भाई हमको, अब हम इसमें सीक्वल कैसे लिखें, तो वो तो आपकी हेडेक होगी ना। फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वो आपको स्ट्रक्चरल, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फिर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको उसको, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप उसमें सीक्वल क्वेरीज वगैरह कैसे लिखोगे। करेक्ट है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने का तरीका अलग होगा, अनस्ट्रक्चर्ड को डेटा को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। ठीक है। तो सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे फॉर सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेस में आपके सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेस में डेटाबेसेस में आरडीबीएमएस भी हो सकता है और नॉन आरडीबीएमएस भी हो सकता है। ठीक है। अब आरडीबीएमएस में बात करोगे तो आरडीबीएमएस में आपका आ जाएगा ओरेकल आ जाएगा, सीक्वल आ जाएगा, सॉरी एमएस एसक्यूएल आ जाएगा, सीक्वल सर्वर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका DB2 आ जाएगा, इन्फिनिक्स डीबी आ जाएगा। ठीक है। पोस्टग्रेस आ जाएगा, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है। लॉट ऑफ बहुत सारे डेटाबेसेस। ठीक है। और अगर मैं नॉन आरडीबीएमएस की बात करूं, ठीक है, मोंगो डीबी हो गया, डायनामो डीबी हो गया, डक डीबी, फिर इसके बाद सिला हो गया। ठीक है। बीहाइव हो गया, एचबेस हो गया, कैसेंड्रा हो गया, मम कैच हो गया, रेडिस हो गया। ठीक है। काउच डीबी। ठीक है। कॉर्नर स्टोर। ठीक है। मतलब लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। ठीक है। जब डेटाबेस की बात करोगे तो अब आप इसमें जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आरडीबीएमएस की अगर हम बात करें तो आरडीबीएमएस के केस में आरडीबीएमएस के केस में आप आराम से एसक्यूएल लिख सकते हो। ठीक है। एसक्यूएल के थ्रू आप आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या यूज होता है, इसमें नो एसक्यूएल यूज होता है। ठीक है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर आपको नो एसक्यूएल, मतलब अगर आपको कहीं 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 ना कहीं से नो एसक्यूएल डेटा डेटा सोर्स मिल रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि जो नो एसक्यूएल का डेटा है, राइट, उसको आप किसी तरीके से माइग्रेट कर पाए। मतलब जो आप, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, मतलब इसमें अनस्ट्रक्चर्ड होता है, याद रखना। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नो स्कीमा। ठीक है। इसका कोई प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें है प्री डिफाइंड स्कीमा होता है। ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है। ठीक है। जब हम अभी एसक्यूएल पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अगर तो अगर आपको मान लो डेटा अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू, गाइस 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 गाइस, म्यूट 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 योरसेल्फ प्लीज। ठीक है। तो अगर अगर मान लो आपका डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो यू नीड टू कन्वर्ट टू यू नो स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। ठीक है। तो डेटा कुड बी इन फॉर्म ऑफ एक्सेल्स। ठीक है। अब एक्सेल है तो जब आप एक्सेल बोलोगे तो इसमें सीएसवीज भी आ सकती हैं, टीएसवीज भी आ सकती है, टूम्स फाइल भी आ सकती है। ठीक है। यहाँ तक कि जेसन फाइल्स भी आ सकती है, जेसन्स। हाँ जी मोहम्मद, दिस दिस इंटायर डॉक यू आर गोइंग टू गेट, डोंट वरी। ओके। आई विल क्रिएट अ क्लासरूम। ठीक है। आई विल क्रिएट द क्लासरूम फॉर यू पीपल, सो यू पीपल कैन ज्वाइन देयर एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ओके। आई विल क्रिएट अ गूगल क्लासरूम फॉर यू। ओके। फिर बात करते हैं एपीआईज। जब एपीआईज की बात करते हैं, एपीआईज हो गई। ठीक है। एपीआई से डेटा उठा सकते हो। फिर आप लॉग्स से डेटा उठा सकते हो, लॉग्स हो गई। ठीक है। फ्लैट फाइल्स हो गई। ठीक है। फ्लैट फाइल्स हो गई, डॉट पी। फिर इसके बाद जो है पार पार्के फाइल्स हो गई। ठीक है। ये होता क्या है, पार्के फाइल्स बेसिकली एक बाइनरी फाइल्स ही होती है। ठीक है। सीएसवी
जैसे सीएसवी होती है वैसी होती है, बस फर्क क्या होता है कि सीएसवी को रीड करना बड़ा थोड़ा सा टफ होता है, और जो पार्के फाइल्स होती है वो बहुत कंप्रेस्ड होती है, मिनिफाइड फाइल्स होती है, ठीक है। बेसिकली जीबीज टीबीज का डेटा बहुत ही एमबीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया जैसे कि ऑर्डर टेबल हो गया, कस्टमर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है, स्क्रैप्स के फॉर्म में हो सकता है डेटा। डेटा को आप वेब स्क्रैप करके जो है मंगा सकते हो, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा वेब स्क्रैपिंग भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीखेंगे हम लोग। इसके बाद तो बेसिकली अभी तक पूरे पाइपलाइन में हमने कितनी चीजें सीख ली। अगर हम एनालिटिक्स पाइपलाइन की बात करें तो एनालिटिक्स पाइपलाइन में हमने अभी क्या क्या सीखा। तो सबसे पहला जो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बेसिकली बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ एनालिटिक्स यू कैन यूज। सेकेंड वन इज फाइंडिंग द डेटा कलेक्शन। द सेकेंड स्टेप इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में यू ट्राई टू नो द सोर्स, ठीक है, एंड व्हाट टेक्निक्स विल बी यूज्ड, ठीक है, डेटा कलेक्शन में। फिर क्योंकि भाई अगर मान लो डेटा तुमको वेब स्क्रैपिंग से मिल रहा है या ईटीएल से मिल रहा है, ठीक है, ईटीएल पाइपलाइंस के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, या वेयर हाउस से डेटा मिल रहा है, वेयर हाउस, ठीक है, डेटा वेयर हाउस से मिल रहा है, या डेटा वेयर हाउस से मिल रहा है, या लेक से मिल रहा है, डेटा लेक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो आपको उसकी टेक्निक्स भी पता होंगी। भाई जैसे जो जो टेक्निक्स आप सीएसवी को हैंडलिंग में लगा सकते हो, वो टेक्निक आप पार्के में नहीं लगा सकते, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग अगर आप कर रहे हो तो वेब स्क्रैपिंग के टेक्निक्स अलग है कि नहीं। वेयर हाउसिंग टेक्निक्स अलग है, ईटीएल पाइपलाइन टेक्निक्स अलग है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेटा को क्लीन करना। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना, वो होता है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, ये सारा के सारे जो स्टेप्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं। क्योंकि यही यही वो जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं मार्शमेलो, यूज कर सकते हैं पाइडेंटिक्स, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पैकेजेस हैं जिनकी मदद से, मतलब पाइथन के कुछ पैकेजेस हैं जिनकी मदद से हम लोग डेटा क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पांडास हो गया, ठीक है, पांडास में ड्रॉपना फिलना, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग डेटा क्लीनिंग और डेटा को बेसिकली प्रोसेस करते हैं, ताकि हम लोग डेटा को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, और याद रहिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो जैसे मिसिंग वैल्यूज को मैच करना, फिर डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, ठीक है, रॉन्ग डेटा टाइप्स को मैच करना, फिर इसके बाद जो है मैच मेकिंग करना। Sir, why we use CSVs most of the time in ML projects like guys, तारिक भाई, जो है ML प्रोजेक्ट्स में CSVs को यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ CSV नहीं है भाई। CSV इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मतलब CSV में आप बहुत सारा डेटा नहीं रख सकते, समझ रहे हो। और CSVs को हैंडल करना भी थोड़ा मीन्स टफ है, समझ रहे हो आप। ठीक है, रियल टाइम यूज केसेस में डेटा आर गोइंग टू कम फ्रॉम सम डेटा सोर्स ओनली, ठीक है। सम डेटा सोर्स लाइक डेटाबेस हो गया, ठीक है, S3 बकेट हो गया। सीएसवी तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट्स तक ही वैलिड है, समझ रहे हो आप। या थोड़ा एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ, ठीक है। सीएसवीज बेसिकली, सीएसवीज इसलिए पॉपुलर हो गई, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। एक एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कैगल, ठीक है। कैगल का नाम सुना है आपने? कैगल का नाम सुना है, कैगल कम्युनिटी, है ना। तो कैगल जो कम्युनिटी है, वो कैगल कम्युनिटी, ठीक है, जो कैगल कम्युनिटी है ना, ठीक है, कैगल कम्युनिटी बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी है जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बड़ी पॉपुलर है। और ये इसमें जो सारा का सारा डेटा है वो बेसिकली कैगल मतलब जितने भी तुम्हारी यूज केसेस हैं, है ना, ज्यादातर जितने भी यूज केसेस, चाहे वो प्रोडक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, चाहे डिसीजन ट्रीज हो, चाहे रैंडम फॉरेस्ट हो, है ना, लीनियर रिग्रेशन हो, कुछ भी हो, उसके सारा का सारा जो आपको, अगर उसके लिए भाई आपको जो भी आप मॉडल्स बनाओगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग डेटा सेट चाहिए होगा, ठीक है। तो उस सब के लिए ना बेसिकली क्या है, आपको सैंपल डेटा चाहिए होता है, ठीक है। चाहे आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, चाहे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज कर रहे हो। तो दो तरह का डेटा होता है, ठीक है। एक होता है ट्रेनिंग डेटा, जिसको हम टेस्ट ट्रेन डेटा बोलते, मतलब एक ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्ट डेटा होता है। तो
ट्रेनिंग के लिए भाई आपको कहीं ना कहीं से तो डेटा चाहिए चाहिए। तो ये जो कैगल कम्युनिटी है ना, इन लोगों ने बेसिकली सीएसवीज को पावर किया, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि सीएसवीज वगैरह आप लोग नॉर्मली पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जबकि जबकि अगर रियल टाइम इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्के फाइल्स हो गई, ठीक है, वो रीडेबल फॉर्मेट में होती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीएसवीज एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब एक ऐसा, आप ऐसे समझ लो, मोस्ट कॉमनली यूज डेटा सेट का तरीका है। मतलब अगर आपको कोई मॉडल को ट्रेन करना है तो सबसे इजीएस्ट वे में, अगर आपको बहुत सारा डेटा चाहिए तो आप उसको सीएसवी के फॉर्म में रख लीजिए, और रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो भी आप सीएसवी में रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट सिंपलेस्ट एंड रीडेबल फॉर्मेट अगर आपको चाहिए डेटा का, तो वो सीएसवी हो सकता है, ठीक है। तो तो इस तरह की, जैसे कैगल जैसी जो कम्युनिटीज हो गई, उन लोगों ने बेसिकली ऐसा स्टैंडर्ड निकाल दिया। लेकिन जब आप रियल यूज केस सिनेरियोज में जब आप काम करोगे ना, क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह में, तो डेटा सिर्फ और सिर्फ सीएसवीज में नहीं रहता। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि मोस्ट टाइम रियल टाइम, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपका, मतलब आप ये समझ लो कि आपके पूरे डेवलपमेंट का जो 70 से 80% टाइम जाएगा ना, वो क्लीनिंग वगैरह में ही जाएगा। फिर जो चौथा जो पार्ट आता है, वो आता है बेसिकली एनालिसिस में। अब इस एनालिसिस में कौन सी एनालिसिस हो सकती है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकती है, ठीक है। मतलब स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल। वन सेकेंड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स हो सकती है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एनालिस्टिक एनालिसिस हो सकती है। मतलब बेसिकली एनालिसिस के में, जब आप एनालिसिस की बात करोगे तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के फंडे भी लगेंगे, ठीक है, स्टैट्स के भी फंडे लगेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी भी लगेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग हो गया, एग्रीगेशन ग्रुपिंग हो गया, ठीक है, एग्रीगेशन हो गया, फिर उसके बाद कंपैरिजन हो गया, राइट। तो इसके लिए हम लोग सीक्वल और एक्सेल को बहुत बढ़िया से यूज करते हैं। और जो पांचवा स्टेप होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में बेसिकली चार्ट्स को क्रिएट करना, ठीक है, केपीआईज बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, फनल्स बनाना, ठीक है, फनल बनाना। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती है, राइट। तो बेसिकली, और फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है बेसिकली, विजुअलाइजेशन करते क्यों है? विजुअलाइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो विजुअल्स को बहुत अच्छे से रीड कर पाता है, राइट। तो जो पर्सन टेक्निकल नहीं है, ठीक है, जो पर्सन टेक्निकल नहीं है, वो लोग भी बेसिकली जो है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो भी बेसिकली इनसाइट्स को, ट्रेंड्स को समझ समझ पाए और उनको देख के डिसीजन ले पाए, राइट। जब कोई चीज आपको रंग बिरंगी दिखती है ना, चार्ट्स के फॉर्म में, डैशबोर्ड्स के फॉर्म में, और आपको टेक का आइडिया नहीं, तब भी आप बेसिकली ग्राफ्स वगैरह को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रही है, राइट। तो बेसिकली जितने भी नॉन टेक पीपल होते हैं, ठीक है, बिजनेस बिजनेस पीपल होते हैं, तो नॉन टेक होते हैं, राइट। तो उनको डिसीजन लेने में आसानी मिले, इसलिए हम लोग बेसिकली विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल है कि इंक्रीज द मार्केटिंग बजट, ठीक है, रिमूव द लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, इंप्रूव द डिलीवरेबिलिटी स्पीड, इनसाइट विदाउट एक्शंस आर यूजलेस, ठीक है। तो जब तक बेसिकली इंसाइट्स में आप कोई ना कोई जब तक एक्शंस नहीं लोगे, ठीक है, तो यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। what tools are we going to use? So तो the tools will be, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टेजेस भी लिख रखी है, और टूल्स की बात करें तो जैसे डेटा कलेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ये सीक्वल यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनिंग की बात करेंगे तो एक्सेल और पाइथन हम लोग यूज करेंगे। एनालिसिस के लिए सीक्वल और एक्सेल यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए भी पावर बीआई और टैबलो यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आप पीपीटी या डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं। और और अगर मैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को बेसिकली हाईलाइट करने की बात करूं तो उसके लिए आप एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब साथ ही साथ जब मैं बिजनेस क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो बिजनेस क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस क्वेश्चन दे दिया गया, व्हाई आर कस्टमर लिविंग, जो हमने पहले बात किया था, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना, तो उसमें आपको आपके जो एनालिटिकल क्वेश्चन होने चाहिए वो जैसे होना चाहिए, चर्न चर्न रेट क्या है पर मंथ, ठीक है, पर रीजन चर्न रेट क्या है, ठीक है, और जो है प्राइस का चर्न रेट क्या है। तो ये सारे के सारे जो बेसिकली वर्ड्स है ना, बिजनेस टर्म्स वाली बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे फनल, चर्न रेट, प्रोबेबिलिस्टिक रेशियो, वेलोसिटी, ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी होती हैं, राइट। तो एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो है ना, कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है, एग्रीगेशन रेशियो, है कि नहीं, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं जिनको आपको कवर करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि टेक एनी ऐप, ठीक है, यू यूज ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, and answer the following questions: what data is generate, what analytical questions are possible, what decisions can be taken, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड तो यही है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, राइस गाइस। एनी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ classroom for you people. Let me create one classroom for you. ओके, सो दिस इज द क्लासरूम कोड। ओके, और ये मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ आपको यहाँ पर ज्वाइन करने की, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग यू विल गेट, प्लीज एवरीबडी ज्वाइन दिस, ठीक है। इस आप क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए ताकि यू कैन गेट ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। नो बैथ, यू कैन नॉट एक्सेस जावा, जावा पीपल, इट इज क्लासरूम फॉर अदर पीपल, different college. Okay, it is for full stack Java people. Why do you need access for that? Okay, so I would request everybody to join the classroom. Okay, and do share with your friends. What I'll do is I'll upload the this notes as well. Okay, 1 second, I'll upload this notes as well. Yeah, stream, please find the notes for day 1. Okay, ओके, तो ये मैंने नोट शेयर कर दिए हैं। ओके गाइस,
once again, let me share the code as well. ओके, दिस इज द लिंक एज वेल। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको रिकॉर्डिंग भी इसी क्लासरूम पे भेज दूंगा, ताकि आज जो सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल सके। ओके गाइस, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ओके, वन सेकेंड, everybody is trying to access. Anybody? Okay, and okay, please check if you people are able to access it. So I hope this is clear for everybody. Okay, and what else notes I have shared, एंड रिकॉर्डिंग, या रिकॉर्डिंग भी मैं इसी में आपको राइट शेयर कर दूंगा, राइट? ओके, सो यू पीपल हैव कैन हैव एन एक्सेस टू दिस। ओके, मेक श्योर एवरीबडी शुड ज्वाइन। क्या हुआ? ओनली सिर्फ only 60 people have, 60 people are there, only 10 people have joined. So make sure you all everybody should be able in the position to join. ओके, अदरवाइज रिकॉर्डिंग वगैरह एक्सेस नहीं हो पाएगी फिर आपको। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू।